اب میں بلا تاخیر اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری مہمان خصوصی محترمہ امت النعیم محمدی صاحبہ، یقیناً آپ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں مگر حقیقت بیانی بھی کوئی چیز ہے۔ آپ کی شخصیت ہمارے لیے صحرا میں بارش کا پہلا قطرہ، ظلمت میں روشنی کی کرن اور کانٹوں کے درمیان مسئلے گل کی سی ہے۔ آپ مدرسہ سمیہ للبنات سیونی کی صدر معلمہ تھیں، اب آپ مرکز مریم بنت عمران کی انچارج ہے، جس میں آپ خواتین اور بچیوں کو تدریسی خدمات انجام دے رہی ہے۔ آپ کی شخصیت رات کی تاریکی میں چاند کی طرح نکھرنے، آسمان کے بیچ ستاروں کی طرح چمکنے اور کلیوں کی صف میں پھولوں کی طرح بکھرنے کی ہے، جن کے بارے میں صرف یہ کہوں گی، صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ لہٰذا میں محترمہ امت النعیم محمدی صاحبہ سے ادباً گزارش کرتی ہوں کہ آپ اپنے بیان سے ہم سامعات کو مستفید فرمائیں۔ زبان کو کھول دو اپنی شگفتگی کے لیے، زبان کو کھول دو اپنی شگفتگی کے لیے، ترس رہی ہے یہ بہنیں بس ایک ہنسی کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ عزیز خواتین، ماں اور بہنوں، آپ بھی میرے ساتھ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عزیز خواتین، ماں اور بہنوں، اراکین جلسہ، معزز بزرگ ہستی، مہمان خصوصی، آپ تمام کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں، اور خاص طور سے ہماری بزرگ مائیں اور بہنیں، ان تمام کا میں دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمیں دعوت و تبلیغ کی غرض سے قال اللہ اور قال رسول کی باتیں سننے اور سنانے کے لیے آپ
ہمیں بلایا، دعوت دی، ہم نے آپ کے کہنے پر لبیک کہا۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس کام کو، ہمارے اس پروگرام کو اللہ رب العالمین کامیاب اور کامران بنائیں، اور اللہ رب العالمین آپ کے دینی جذبے کو مزید نور علی نور ترقی عنایت فرمائیں، آمین۔ الحمدللہ آج بڑی انتہائی خوشی اور مسرت کی بات یہ ہے، آج ہم ایک ایسی مجلس میں موجود ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین کی وہ مخلوق موجود ہے جو اللہ رب العالمین نے، جس مخلوق کو اللہ رب العالمین نے نور سے پیدا کیا، اور میں اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ احسان و شکر ادا کرنے کے بعد جناب اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں درود و سلام ہو، جس ہستی مبارک پر کہ اس اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت کے لیے ایک رسول خاتم النبیین احمد مرتضیٰ مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ہدایت کے لیے اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ عزیز ماں اور بہنوں، میرا یہاں آپ کے اس جنازوں میں پہلا پروگرام ہے۔ اللہ رب العالمین کچھ بچیوں کو میں نے اصلاح المسلمین مدرسے کی بچیوں کو دیکھ کر کافی مجھے بھی شوق اور جذبہ اور انتہائی خوشی ہوئی کہ ہمارے اس چھوٹے سے شہر یا بستی یا قصبہ کہیے، اس میں الحمدللہ ثم الحمدللہ تعلیم اور ترقی کا دور، اور تعلیم کی اہمیت اور تعلیم کی کرنیں یہاں پہ بھی پھیل رہی ہے۔ میں جو اصلاح المسلمین کی معلمات ہیں، میں نے ان کے لیے میں بھی الحمدللہ مرکز مریم بنت عمران میں بچیوں کو، چھوٹے سے بچوں سے لے کر اور بزرگ خواتین کو بھی میں اسی دینی تعلیم سے فیضیاب کرا رہی ہوں۔ اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ احسان عظیم ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کی اس میں مصلحت نہ ہوتی تو اللہ رب العالمین ہم تمام سے یہ کام نہیں کرواتا۔ اور آپ تمام کو اس بات سے واقف ہیں کہ اللہ کی اجازت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا، اور اللہ رب العالمین ہر شخص پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا کہ وہ اس کے اٹھانے کے قابل طاقت رکھتا ہو۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کی ان کوششوں اور کاوشوں کو قبول فرما لے، اور ہمارے لیے آخرت میں اس کا ذریعے کامیاب ہونے کا اور جنت میں جانے کا اللہ رب العالمین دھیرے دھیرے نیکیاں کر کے ذخیرہ جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ لیجئے آج میں جس موضوع کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں، میرا اور 1400 سال پہلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آنے سے پہلے اس دنیا کے اندر 1,24,000 انبیاء کرام آئے، تمام نے توحید کی
کو لے کر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوئی۔ اللہ رب العالمین اپنے 30ویں پارے میں فرماتا ہے سورہ اخلاص کے اندر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، ولم یولد، اور نہ وہ پیدا کیا گیا، ولم یکن له کفوا احد، اس کے برابر اس کے کوئی بھی ہمسر نہیں۔ عزیز سامعات، انسان کی کامیابی عزیز خواتین، ابھی ہمارے اور آپ کے سامنے اذان ہوئی ہے۔ میں خواتین میں سے ایک خاتون سے، آپ خواتین سے سوال کرتی ہوں، اذان کے بعد کی دعا کیا ہے؟ بولیے بولیے، کہیے۔ الحمدللہ، میں بھی سیونی میں ایسے ہی اجتماعات میں کرتے رہتی ہوں، خواتین اور چھوٹی بنڈی بہنوں کو لے کر ہفتہ واری پروگرام دے رہتے ہیں۔ میرا سوال کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کو معلوم نہ ہو، الحمدللہ معلوم ہے، لیکن پھر بھی جن خواتین کو نہیں معلوم تو وہ آپ کو دیکھ کر شوق اور جذبہ رکھے گی اور دعائیں بھی یاد کر لے گی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے بیچ میں جو دعا کی جاتی ہے وہ کبھی رد نہیں ہوتی، کبھی اللہ کے دربار سے رد نہیں ہوتی، لوٹائی نہیں جاتی، اللہ رب العالمین اسے قبول کرتا ہے۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا للذی وعدته رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم نماز پڑھیں یا پھر ہمارے پروگرام کو جاری رکھیں؟ نماز پھر ڈسٹرب ہو جائے گا، تھوڑے ٹائم سے بھی تو پڑھ سکتے ہیں، 4 بجے تک چلا گا، ابھی 3:30 ہی بجے۔ اللہ رب العالمین اپنے کتاب قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ کسی کی اولاد نہیں اور اس کے برابر کوئی ہمسر نہیں۔ انسان کی کامیابی اور کامرانی کا اصل مقصد توحید ہے، اور یہ وہی اللہ رب العالمین ہی کی ذات پر عقیدہ رکھنا کہ جس کائنات کو اللہ رب العالمین نے سجا اور سنوار کر رکھا ہے وہ اللہ رب العالمین ہی کی ذات ایکتا جو عرش پر بیٹھی ہے۔ اسی توحید کی طرف اس دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء کرام رضی اللہ علیہ مجمعین آئے، سب نے لوگوں کو دعوت توحید پیش کیا، یہاں تک کہ اور اللہ رب العالمین اپنے کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔
इल्लल्लाह, ला इलाहा कहकर एक मोमिन बंदा अपने रब के माबूदाने बातिला का इनकार कर देता है और इल्लल्लाह कहकर अल्लाह के एक होने का सबूत देता है। आइए मैं आपको इसी कलमे तौहीद के माना समझाऊं कि तौहीद का माना क्या है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को उसकी जात, उसकी सिफात और उसकी वहदानियत में एक जानना और एक मानने का नाम तौहीद है। और इसी कलमे तौहीद की तरफ तमाम अंबिया किराम रज़ी अल्लाह अजमईन ने इसी लोगों को दावत तौहीद दी। हत्ता कि जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी लोगों को सबसे पहले तौहीद की तरफ बुलाया। यहाँ तक कि यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जेल की जिंदगी काटने के बावजूद भी जेल के साथियों को दावत तौहीद पेश कर रहे हैं। और जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान जाइए जनाबे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनके आने से पहले ये कौम कुफ्र, जलालत, शिर्क, बिदअत तमाम चीजें मुलव्विस थी। पहले लोग बुतों की पूजा पाठ किया करते थे, उसी से अपनी मुसीबतें और परेशानियों का हल निकालते थे और उसी से अपनी फरियादें किया करते थे और उसी से अपनी हाजत रवाई पेश किया करते थे। यहाँ तक कि उसी के नाम पर जानवर भी ज़िबा किया करते थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत तौहीद पेश की और फरमाया क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, अगर तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहोगे ना तो तुम कामयाब हो जाओगे। चुनांचे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों के साथ रहकर पूरी दुनिया में कलमा परचम ला इलाहा इल्लल्लाह का लहरा दिया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब के पास जाते हैं और अर्ज करते हैं। उस वक्त अबू तालिब वफात का वक्त, जब अबू तालिब उनके चचा अबू तालिब की वफात का वक्त आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब के पास जाते हैं और अर्ज करते हैं, ऐ चचा जान, आपकी वफात का वक्त करीब आ गया है, आप ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लीजिए ताकि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ जाकर आपके हक में गवाही पेश कर सकूं। देखते क्या है कि अबू तालिब के पास अबू जहल और अब्दुल्ला बिन उबई बैठे हैं। अबू जहल और अब्दुल्ला बिन उबई कहते हैं, क्या तुम मोहम्मद अपने भतीजे मोहम्मद के कहने पर क्या तुम अपने बाप अब्दुल मुत्तलिब के दीन को छोड़ दोगे? उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ऐ भतीजे, चाहे तुम मुझे कितना भी कह लो, लेकिन मैं तेरे दीन पर आने वाला नहीं और मैं ला इलाहा इल्लल्लाह का इनकार कर दूंगा। अजीज सामियात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वाक़े से हमें ये बात मालूम होती है कि जिसका आखिरी कलमा, जिसकी वफात अगर अक़ीदा तौहीद पर नहीं, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा और जिसकी वफात अक़ीदा तौहीद पर होगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे जन्नतुल फिरदौस में दाखिल करेगा। मुस्लिम की एक रिवायत है, मन काना आखिरु कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में दाखिल होगा। गोया कि अगर वफात कलमा तौहीद और अक़ीदा पर सही तो उसके आमल सालिहा और कलमा तौहीद पर वफात है तो उसके तमाम आमाल सही, तो वो जन्नतुल फिरदौस में और उसकी मग़फ़िरत उसके लिए यकीनी हो जाएगी। और जो
جس کی وفات اگر کلمہ توحید اور غلط عقیدے پر ہے تو اس کی وفات کہ اللہ کی مغفرت اس کے لیے یقینی نہیں۔ اب آئیے میں آپ کو عقیدہ کیا ہے اس کے بارے میں بھی آپ سے پر روشنی ڈالوں گی، آپ کے سامنے روشنی ڈالوں گی۔ عقیدہ یہ عقد سے بنا ہے اور عقد کے معنی ہوتا ہے باندھنا، اور عقیدہ کی اصطلاحی معنی دل میں کوئی بات ایسی بیٹھ جائے کہ اس کو کوئی بھی مضبوط چیز نہیں ہٹا سکتی۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک روایت مسلم کی ایک روایت میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی کتاب میں فرماتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کو کوئی نفع نہیں دے سکتا، فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اور اگر اللہ اس کو فائدہ پہنچانا چاہے تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ ہے، حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا، ان کے عزیز و اقارب رشتہ داروں نے انہیں عرب کی سرزمین پر کڑکڑاتی تیز دھوپ میں انہیں کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ وہ 3 دن تک کھڑے رہیں، بھوک پیاس سے نڈھال ہو گئی، اور جب کھانے کے لیے کھانا طلب کیا تو عرب کی سرزمین پر انہیں کھانے کے لیے گرم چیز شہد اور روٹی دی گئی، اور جب انہیں پانی طلب کیا تو وہ پانی سے ترس گئی، لیکن اسی طریقے سے 3 دن گزر گئے، آپ ام شریک بدحواس ہو گئی، لیکن انہوں نے کلمہ توحید اور اپنے عقیدے سے انحراف نہیں کیا۔ عزیز ماں اور بہنوں، یہ ہے ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طریقے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وفد 10 لوگوں کے اوپر شامل ایک وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 لوگوں میں سے 9 لوگوں سے بیعت لیتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ صحابہ سے ملا رہے ہیں، اسلام کی طرف دعوت دینے کے لیے بیعت ہو رہی ہے۔ آپ 9 لوگوں سے بیعت لیتے ہیں، لیکن ایک شخص سے بیعت نہیں لیتے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، کیا ماجرا ہے کہ آپ نے 9 لوگوں سے بیعت لیا اور ایک شخص سے بیعت نہیں لی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس نے تمیمہ لٹکایا ہوا تھا، تمیمہ مانے تعویذ لٹکایا ہوا تھا، اس لیے میں نے اس شخص سے بیعت نہیں لی۔ چنانچہ جیسے ہی اس شخص کو معلوم ہوتا ہے، فوراً وہ اپنے گلے سے نکال دیتا ہے اور فوراً کاٹ کر پھینک دیتا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے بیعت لیتے ہیں اور آگے فرماتے ہیں، من تعلق تمیمتن فقط اشرکا، جس نے تمیمہ تعویذ پہنا ہو اس نے شرک کیا۔ گویا کہ تعویذ پہننے والا، تعویذ لٹکانے والا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ ہمیں آنے والی مصیبت سے چھٹکارا دے دے گا، ہمیں کوئی بیماری نہیں پہنچے گی، ہم تمام مصیبتوں سے حفاظت میں رہیں گے، جبکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ من تعلق تمیمتن فقد اشرکا، جسے تعویذ لٹکائی اسے شرک کیا۔ گویا
उस शिर्क में दाखिल हो गया। गोया कि उसका ये अकीदा बन गया कि हमारा ये हिफाजत करने वाला ये तावीज़ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर से उसका भरोसा उड़ जाता है और वो किस पर भरोसा करता है? उस तावीज़ पर। और जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन तअल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरका, जिसे तावीज़ लटकाई उसने शिर्क किया। अजीज माँ और बहनों, मैं ख़वातीन और लड़कियों से कहूंगी भाई इत्मीनान से बैठें। अजीज माँ और बहनों, याद रखिए आज हमारे ख़वातीन के अंदर बहुत से बुरे अकायद पाए गए जिसको बदशगुनी कहते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदशगुनी के बारे में फरमाते हैं, अतियरतु शिर्कुन, बदशगुनी शिर्क है। गोया कि आज हमारा एक मुस्लिम माशरे की ख़वातीन के अकायद छोटी छोटी बातों पे बहुत ही खराब हो चुके हैं, जिसका हल अगर हम निकालना चाहें तो वो दीनी तालीम से हो सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अतियरतु शिर्कुन, बदशगुनी शिर्क है। आज हमारी ख़वातीन के ये अकायद है कि अगर बुध का दिन आए तो ये मनहूस है, अगर सफर के महीने में सफर करना जायज नहीं, बिल्ली अगर रास्ता काट दे तो मुसीबत आएगी। इसी तरीके से मुस्लिम की एक रिवायत है कि जो शख्स, जो मर्द, जो औरत अपने हाथ आजमाने के लिए, हाथ की लकीरें दिखाने के लिए और अपनी किस्मत को आजमाने के लिए अगर वो काहिनों के पास जाता है, नुजूमियों के पास जाता है, तो ऐसे शख्स, ऐसे मर्द, ऐसे औरत की नमाज 40 दिन तक के कबूल नहीं होती। अजीज सामियात, ये है हमारे अंदर की बदशगुनियाँ, गलत अकायद। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम की हिफाजत इन गलत अकायद से फरमाए, क्योंकि हर मुसीबत का टालने वाला, हर परेशानियों को झेलने वाला, बीमारी से शिफा देने वाला और बे औलाद को औलाद देने वाला, बेरोजगारी को रोज़े देने वाला सिर्फ और सिर्फ वही अल्लाह रब्बुल आलमीन ही की ज़ात है, जो अर्श पर मुस्तवी है। अजीज सामियात, हम अगर हमारा अकीदा, हमारा भरोसा अगर अल्लाह से हट गया तो शायद कल कयामत के दिन हमारी नजात जन्नत में जाने के लिए नहीं रहेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस वाक़े को याद करो, जब मैदान महशर में जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़ कौसर पर बैठे होंगे और अपने उम्मतियों को, जन्नत में जाने वाले जन्नतियों को जन्नत से अपने हौज़ कौसर से जाम पिला रहे होंगे, तो तमाम की तमाम उम्मती अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़ कौसर पर आएगी। आपका जामे शहादत पीने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जाएगा, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे, सुहकन सुहकन ली बादी लिमन गय्यरा दीन बादी, दूरी हो ऐसी कौम के लिए जिसने मेरे नाने
जाने के बाद, मेरे दुनिया से निकल जाने के बाद अपने दीन में नई नई इजादात कर दिए, ऐसे लोगों के लिए दूरी हो। चुनांचे ऐसे शख्स को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़े कौसर से जाम नहीं पिलाया जाएगा। अजीज माँ और बहनों, याद रखिए, आज जरूरत इस बात की है कि हम दुनिया में रहकर हमारे अकीदे को दुरुस्त करें। खास तौर से घर की खवातीन जो पहले नंबर पर आयद होती हैं, क्योंकि माँ बच्चे का पहला दरसगाह माँ की गोद है। अगर माँ जिस तरीके से तरबियत देगी, उसी तरीके से बच्चा परवरिश पाएगा, क्योंकि बच्चे का जहन एक कोरे कागज की तरह होता है। जिस तरीके से आप उसके जहन पर एक कोरे कागज पर लकीरें खींचोगे, उसी तरीके से वो आपकी नकल हरकत करता रहेगा। तो जरूरत है इस बात की कि हम दीनी तालीम सीखें और अपने अकायद को दुरुस्त करें। जरूरत है इस बात की, इस्लाह कौम आपको मंजूर है, अगर इस्लाह कौम आपको मंजूर है, अगर बच्चों से पहले माँ को तालीम दीजिए। तालीम हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तालीम माँ की गोद से लेकर बच्चे कब्र के अंदर जाने तक के हासिल करते रहो। तालीम सीखने की कोई उम्र नहीं होती, क्योंकि बस जरूरत है इस बात की कि हम इल्म का दिया अपने अंदर रोशन करें। याद रखिए, बच्चे की पहली माँ दरसगाह एक माँ की गोद है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम औरतों के बारे में फरमाया था कि हम ही औरतें थी जो ज़माने जाहिलियत में भेड़ बकरियों की तरह खरीदी और बेची जाती थी। हमारी कोई हैसियत नहीं थी, हम भेड़ बकरियों की तरह खरीदी और बेचे जाते थे। हमारे लिए विरासत में कोई हक नहीं था, हमें कोई हक नहीं दिया जाता। जब किसी शख्स का शोहर खत्म हो जाता, उसके साथ उसकी लाश के साथ उसकी लाश को भी जिंदा जला दिया जाता था। लेकिन कुर्बान जाइए जनाब अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिसने आकर हम औरतों के मकाम को बुलंद किया और इस्लाम हमारी हिफाजत एक नकाब में कर दी, और जिसकी हिफाजत अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी हिफाजत एक नकाब में कर दी और उसके तालीम के मैदान से भी पीछे नहीं छोड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 बीवियों में से लेकर एक बीवी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। आप अहदीस का मुताला करती हैं, अगर आप किताबों का मुताला करती हैं तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक बड़ी मुहद्दिसा है, एक बड़ी आलिमा है, एक बड़ी फाजिला है। आपको मालूम है अहादीस से 2210 हदीसें हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से किताबों के अंदर मरवी है। गोया कि वो आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये सहाबा इकराम
भी फतवे दिया करती थी। आज जरूरत है इल्म हासिल करने की। अगर हम इल्म हासिल करेंगे तो हमारे अंदर से बिदअत, खुराफात, गलत अकायद इंशाअल्लाह खत्म हो जाएंगे। जरूरत है इस बात की कि हम दीन का इल्म हासिल करें, क्योंकि जब एक मर्द तालीम हासिल करता है तो सिर्फ एक ही मर्द तालीम हासिल करता है, और जब एक लड़की तालीम हासिल करती है उससे पूरा माशरा, सोसाइटी, घर, खानदान तमाम के तमाम दीन से आरास्ता और पैरास्ता हो जाते हैं। बाप अपनी बेटी के जहेज में लाखों जहेज दे दे, बेटी अगर अनपढ़ है, जाहिल है, बदसलीका है, फूहड़ है, तो याद रखिए ये पूरा के पूरा जहेज भंगार खाने में गया। और वही बेटी जिसके अंदर इल्म का दिया रोशन है, एक पूरे खानदान को, एक पूरे माशरे को, एक पूरी सोसाइटी को इंशाअल्लाह एक झोपड़ा भी जन्नतनुमा बन सकता है। शर्त यह है कि हम दीन का इल्म सीखें। आपको मालूम है ज़माने जाहिलियत के अंदर हमारा और आपका क्या मुकाम था। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का एक वाकया, जाहिलियत के ज़माने का एक वाकया आपके सामने रखती हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक शख्स आता है और अर्ज करता है, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं ज़माने जाहिलियत के अंदर मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया। मैं ज़माने जाहिलियत में मेरे पास एक बच्ची थी। अल्लाह के रसूल, मैंने जब वो बच्ची दौड़ने फिरने के काबिल हो गई तो मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसको अपने साथ ले गया, एक जंगल की तरफ ले गया। बच्ची मुझसे पूछती रही, ऐ अब्बा जान, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? बच्ची को हाथ पकड़कर जंगल की तरफ ले जाता है। जंगल की तरफ ले जाने के बाद एक जगह बैठकर गड्ढा खोदना शुरू कर देता है। छोटी सी बच्ची अपने बाप से अर्ज करती है, ऐ अब्बा जान, ये आप क्या कर रहे हैं? किस लिए ये गड्ढा खोद रहे हैं? पेशानी से पसीना पोंछ रही है, कपड़ों से मिट्टी को हटा रही है। ऐ अब्बा जान, आप ये गड्ढा क्यों खोद रहे हैं? बच्ची की आवाज बाप के सीने पे कोई असर नहीं करती। बच्ची चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है। बाप उसी बच्ची को पकड़ता है और मनो मिट्टी उसको अंदर डालकर उसके ऊपर मनो मिट्टी डाल देता है। बच्ची अब्बा जान कहकर पुकारते रहती है, लेकिन वो संगदिल बाप, उसके दिल पर जरा भी असर नहीं होता। चुनांचे इस वाकया को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करता है, ऐ अल्लाह के रसूल, मुझसे ये वाकया, ऐसा वाकया सरसद हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाकया को सुनकर आप इस कदर रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक भीग गई। अजीज माँ और बहनों, ये हाल था हमारा, लेकिन कुर्बान चाहिए जनाब अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने हमारे मुकाम को फर्श से उठाकर अर्श पे खड़ा कर दिया। लेकिन अजीज माँ और बहनों,
बहनों, आज की इस तरक्की याफ्ता दौर में मैं आपको और उन बहुओं को बताना चाहूंगी जो आज बहुएं हमारी दुनिया में आने से पहले ही गोलियां खाकर आने वाली औलाद को खत्म कर देती है। कोई तो औलाद रहती है अबॉर्शन करवा देती है। अजीज माँ और बहनों, याद रखिए, हर शख्स अपने जिम्मेदार के बारे में पूछा जाएगा और फौरन उसी के अंदर आयत करीमा है कि वही सल मौतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। जब जिंदा दरगोर की हुई लड़की से पूछा जाएगा किस सबब से जिंदा दरगोर की गई, तो उस वक्त अजीज माँ और बहनों और बहुओं, तुम क्या जवाब दोगे? जिन औलादों को तुमने दुनिया में आने से पहले ही गोलियां खाकर गिरा दिया, याद रखिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जिंदा नहीं करेगा, बेशक उस औलाद को भी जिंदा करेगा। और उस औलाद से भी पूछा जाएगा तुम्हारे माँ बाप ने ऐसा अमल क्यों किया। लिकुल्ली राइन लिकुल्ली मसूलुन अन रायतिही, हर एक तुम्हारे ऊपर निगरान है और अपनी औलाद के बारे में तुमसे पूछा जाएगा। क्या आज तरक्की याफ्ता दौर में क्या आज हम ऐसा नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, बेशक कर रहे हैं, लेकिन कल कयामत के बारे में क्या जवाब दोगे जब हमारे और आपके, जिसको तुमने अपने वो औलाद, जिसको तुमने इतना पाल पोस कर इतना बड़ा किया, और जब तुम्हारी मौत आई तो जिसने यहाँ तक कि तुम्हारी माँ, यहाँ तक कि तुम्हारी बेटी, यहाँ तक कि तुम्हारा मजाजी खुदा भी तुम्हारे पास नहीं है, जब मौत का परवाना आ गया तो ये औलाद जिसको तुमने इंजीनियर बनाया, जिसको आपने डॉक्टर बनाया, जिसको आपने लेक्चरर बनाया, क्या तब कभी तुमने गौर किया कि कभी दीनी तालीम से आरास्ता किया, सीरत नबवी सिखाई? क्या तुमने उनको ये बताया कि मोहम्मद का नाम और क्या है, हमारे नबी की जिंदगी क्या है, हमारे नबी की बीवियां कितनी थी, हमारे नबी की बेटियां कितनी थी? नहीं, तो हर एक से तुम अपने माँ बाप, तुम माँ बाप की शक्ल में हो, तुम्हारी औलाद के बारे में पूछा जाएगा। कुल्लुकुम मसूलुन व कुल्लुकुम राइन अन रायतिही, हर एक तुम में का एक सवाल अपने घर वालों के बारे में पूछा जाएगा, अपने औलाद के बारे में पूछा जाएगा। तो अजीज माँ और बहनों, उस वक्त क्या जवाब दोगे? आज जो हालात से हम गुजर गए, जो इससे पहले कोरोना वाले हालात आए, तो इस दौर से हम गुजर गए। बाप की मैयत है रखी हुई, बेटी हाथ नहीं लगाती, बाप है बेटा हाथ नहीं लगा रहा है, माँ है बेटी खिदमत नहीं कर रही है। ऐसा वक्त ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए अजाब की शक्ल में भेजा था। क्यों भेजा था? क्योंकि हमने कुरान मजीद को पसे पुष्ट डाल चुके हैं, हमने कुरान की तालीम को पीठ पीछे डाल चुका है। हमने आज हम अकीका भी बड़ी बड़ी महफिलों में और बड़े पैमाने
पर करते चले आए हैं, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे रसूल हजरत हसन और हुसैन का अकीका 7 दिन पे किया। आज हम वो वाली हदीस हमारे सामने लेकर आते हैं कि अल्लाह के नबी 21 दिन में भी अकीका जायज है। याद रखिए, अकीका सुन्नत नबवी पर सिर्फ और सिर्फ 7 दिन में जायज है। अगर आपने 7 दिन के अंदर अकीका किया तो ठीक है, ये कल क़यामत के दिन आपके लिए सिफारिश का जरिया बन जाएगी, वरना वही औलाद तुमको जन्नत में जाने से रोक सकती है, क्योंकि तुमने उसको अल्लाह की गिरवी से नहीं छुड़ाया। अकीका सुन्नत रसूल है, अकीका सदका है, चुनांचे आपने उसकी तरफ से अकीका नहीं किया और वो औलाद 14 दिन में खत्म हो गई, तो उस वक्त अजीज माँ और बहनों क्या जवाब दोगे? यही तो औलाद है हमारे मरने के बाद, वही औलाद हमारे लिए हाथ उठाकर दुआ करेगी, रब्बिग़फिरली वलिवालिदैया वलिल मोमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब, रब्बिग़फिर वलिवालिदैया रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। कब जवाब देगी? जब हम उसे तालीम से आरास्ता और पैरास्ता करेंगे। कभी आपने गौर किया कि एक बच्चा जो आपका स्कूल जाता है, वो स्कूल का बस्ता पीठ पीछे रख कर लेकर जाता है, गोया के वो इस बात की अलामत है कि ये इल्म, मैं नहीं कहती कि इल्म हासिल ना करो, इल्म हासिल करो, तलबल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म का हासिल करना हर मर्द औरत पर फर्ज है। लेकिन दुनियावी तालीम सिर्फ और सिर्फ ये दुनिया में रह जाएगी, और वहीं पर आपका बच्चा कुरान, मकतब, दीनी तालीम का जो किताब है, कुरान है, उसको अपने सीने से लगा कर लेकर चलता है, मस्जिद की तरफ आता है, गोया कि वो इस बात की अलामत है कि ये तालीम आखिरत की तालीम आखिरत तक के ले जाने वाली है। कभी गौर किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं आपका ज्यादा वक्त न लेकर, मेरे पास कहने के लिए बहुत सी बातें अभी मौजूद हैं, लेकिन असर की नमाज को भी ताखीर हो रही है, इसलिए मैं अब आखिरी बात सिर्फ कहकर अपनी जगह लूंगी कि इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलासतिन औ सदक़तुन जारिया औ वलदुन सालिह औ इल्मुन यंतफ़िउ बिही। जब इंसान इस दुनिया से गुजर जाता है ना, तो उसके साथ 3 चीजें जाती है, माल, औलाद, रिश्तेदार, अजीज और अक़ारिब, और एक और माल और रिश्तेदार, अजीज और अक़ारिब दोनों भी कब्रिस्तान से लौट आते हैं, लेकिन अगर इंसान के साथ कब्र तक के जाता है तो वो उसका अमल रहता है, वो उसका अमल रहता है। तो चुनांचे आज भी वक्त है, आज भी अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी दी है कि हम जब भी खर्च करें तो नेकियों के रास्ते पर खर्च करें, हम जब भी एक यतीम बच्चे की परवरिश करें, हम रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक से पेश आए। यही औलाद कल क़यामत के दिन
जब बंदा अपने अमाल नामे को खोल कर देखेगा, अर्ज करेगा अल्लाह मैंने तो ये नेक अमल नहीं किया था, ये मेरे नामे अमाल में कैसे मौजूद है आज? तो अल्लाह ताला कहेगा ये तेरी औलाद जिसको तूने दीनी इल्म सिखा कर आया था, वही दीनी इल्म सिखाने वाली औलाद तेरे लिए हाथ उठाकर दुआ करती है। तो आज तेरी औलाद की वजह से तुझे ये फल मिला है, तुझे ये नेकियां मिली है। बस जरूरत है इस बात की, तालीम औरतों की जरूरी तो है मगर, तालीम औरतों की जरूरी तो है मगर खातून खाना हो मगर सभा की परी ना हो, मगर सभा की परी ना हो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को जो कुछ आज हमने सुना है, सुनाया है, इलाहुल आलमीन हम तमाम के इस प्रोग्राम को कामयाब और कामरान बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इल्म का जज्बा दे। इलाहुल आलमीन आज जो कुछ हमने सीखा है, सुना है, सिर्फ दामन में समेट कर लेके जाइए, क्योंकि हर नेक चीज कभी रायगा नहीं जाती। इंशाअल्लाह हमारे ये नामा अमाल में भी ये वक्त लिखा जाएगा। इलाहुल आलमीन से मैं दुआ करती हूँ, इलाहुल आलमीन जो बीमार है उन्हें शिफाए अता फरमा। इलाहुल आलमीन जो परेशान हैं उनकी परेशानी को दूर फरमा। इलाहुल आलमीन जो बे औलाद है उन्हें औलाद अता फरमा। इलाहुल आलमीन जो बेरोजगार है उन्हें रोजी अता फरमा। इलाहुल आलमीन जो मुसीबतों में दो चार हैं, इलाहुल आलमीन उनकी मुसीबतों को दूर फरमा। इलाहुल आलमीन हमें जब तक की दुनिया में रखना, इलाहुल आलमीन ईमान और इस्लाम पर जिंदा रखना, हमारी औलादों को नेक बनाना, 5 वक्त नमाजी बनाना। इलाहुल आलमीन हमें कर्ज के बोझ से दूर रखना। इलाहुल आलमीन हमारा खात्मा ईमान और इस्लाम पर हो। इलाहुल आलमीन हमसे मरने के बाद आसान हिसाब लेना। इलाहुल आलमीन जो इस दुनिया में नहीं रहे, इलाहुल आलमीन उनकी मग़फ़िरत फरमा। जिनके वालिदैन इस दुनिया में नहीं रहे, इलाहुल आलमीन उनकी कब्र में नूर भर दे, उनके कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ फरमा। इलाहुल आलमीन उनके कारोबार में बरकत दे। इलाहुल आलमीन जो कुछ भी इस जलसे में मेहनत कर रहे हैं, इस जलसे में लगे हुए हैं, इलाहुल आलमीन चाहे वो मर्द हजरात हो या मेरी छोटी मोटी बहनें हो, इलाहुल आलमीन इन तमाम को हिम्मत, क़ुव्वत, सेहत, तंदुरुस्ती और इनके कारोबार में बरकत इनायत फरमा। मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इतना कीमती वक्त देकर हमारी बातों को सुना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर